Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, guys, in this particular session, we are going to discuss our unit number 24, which is all about derivative product. Okay. So, module C, which is all around the treasury management. And today, in this particular session itself, we are going to discuss the role of the uses of derivative product in case of treasury. All right. So we have done with all the units of our module C. So this is the second last unit, which is called derivative product. So whenever we talk about the derivative product, it is all about the four key areas or the four different type of derivatives. So these are फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शंस एंड स्वैप्स. ठीक है, तो ये चारों के बीच में आपका या इन जो फोर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनके यूजेस आपका ट्रेजरी, हाउ ट्रेजरी दे जनरली यूज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट in their ALM management or risk management. So we are going to build that particular connection. All right. So unit 24, derivative product. So which include these many subtopics. Derivative and treasury. Then we have OTC versus exchange traded derivatives, forward options, future and swap, interest rate and currency swap, development of development in Indian market, RBI guidelines in on risk exposures. Okay, so these are the subtopics. One suggestion or recommendation to all of you guys. We have already done with the concept classes and we have spent around 1 hour 40 minutes on this particular topic where we have discussed all these four type of derivatives in detail, okay, and uses and the overall development as well as RBI guidelines. ठीक है, so I'll highly recommend कि first watch that particular portion. ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, because in case of जैसे there are some technology some terminologies, sorry, so कुछ terminologies आपके हैं, they'll be required to understand your like to build your understanding toward this particular topic. ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस के केस में, सो वी हैव like options payoff or derivative payoff basically. ठीक है, so apart from that this swap वाला portion, ठीक है, which is like swap derivative is very important one. ठीक है, तो जिसमें आपका जैसे specifically they have mentioned about the interest rate swap and currency swap, which is used by treasury to manage the ALM itself, or even sometime for it is not only for hedging, sometime derivative treasury they also use these particular product for the speculation as well. Okay, mostly they are used for the hedging purpose, but sometime if we have opportunity in the market, so that treasury they generally they also make they also use derivative to encash those particular opportunities. All right, so in this particular session with the help of number of MCQs, 35 MCQs, we are going to discuss all these subtopics one by one. Okay, so we will start with the introduction of derivatives, exchange versus OTC derivatives and all. Okay, then one by one we will be covering all these particular ones. So पहला question आपका guys, which of the following best explain why derivative are considered high risk financial instruments? ठीक है, so whenever you study derivatives, the definition is basically everywhere you will find the same definition. That is, derivative are financial instruments whose value is derived from or dependent upon an underlying asset. Underlying asset could be stock, indices, commodity, currency and all. ठीक है, तो ये definition I hope सबको पता है और इसका मतलब क्या है ये भी हम जानते हैं. ठीक है, now like whenever we talk about derivatives, why treasury use derivative? Because these are high leverage funds. High leverage means you do not need the initial investment or you need a very minimal amount, that is generally known as margin in case of future. In case of options, it is known as premium. In case of forward and swap agreements, you do not even need any amount. Okay? And even on the basis of your cash position, you can hold you can enter into derivative contract without investing a single rupee. That means जैसे let's say your bank own USD, ठीक है, आपके बैंक के पास आपका let's say they have $1 million, ठीक है, in their cash portfolio. ठीक है,
or in their accounts. So based on this particular one, without investing a single rupee, they can enter into a future contract of this particular USD INR up to 100 million US dollar. ठीक है, अगर वो चाहें तो इतने तक का आपका फ्यूचर. Let's say if you have open position, you have buy position, and here in future you can sell these particular one without investing a single rupee. ठीक है, so that's why these are generally known as high leverage fund. ठीक है, तो यहाँ पे like to enter into a portfolio of 1 crores, you do not need 1 crore rupees. ठीक है, अगर आप फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं, let's say there is any indices, let's say Nifty or Sensex or gold or any currency contract, तो वहाँ पे you'll be requiring a minimal amount. That amount is generally known as margin in case of exchange traded derivatives, and you have to maintain that particular margin on M2M basis. That is generally known as mark to market basis. All right. So a derivative transaction are always speculative and lead to losses. No, it is not necessary. It can be used for hedging purpose also, and that it is not necessary that they'll always lead to losses. Okay? So we have both side profit and losses as well. Okay? And it is also primarily used for the hedging purpose. Okay? Derivative market are not regulated. It is regulated. We have exchange traded derivatives. Okay? OTC derivative involve leverage. Leverage means financial leverage. I hope you heard about this particular one. So financial leverage is something ki like आपका जैसे as I gave you an example of this particular one, or to enter into a contract of 100 crore rupees, let's say your margin is 10%, that means सिर्फ 10 करोड़ रुपए के साथ you can own a portfolio of 100 crore rupees. ठीक है, that is the one. ठीक है, which amplify both potential gain and losses. This is 100% true. ठीक है, अब जैसे हमने किसी उसमें like for speculation purpose we entered into a contract जहाँ पे हमें लगता है कि आने वाले समय में इसके prices बढ़ेंगे. Let's say we hold this particular one in future. आपका कैश, ठीक है, तो हम उसमें बाई भी कर सकते हैं, इसी के बेसिस पे वी कैन सेल इट. ठीक है, अगर सेल करेंगे दैट मीन्स वी आर हैजिंग दैट पर्टिकुलर वन, बाय करेंगे दैट मीन्स वी आर लाइक ओवर बुलिश अबाउट दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कैश में तो उसका बेनिफिट ले रहे हैं, आपका फ्यूचर में भी उसके बेनिफिट या एडवांटेजेस लेना चाहते हैं. ठीक है, डेरिवेटिव ऑलवेज रिक्वायर अ लार्ज इनिशियल मार्जिन. नो, इट इज वेरी मिनिमल इनिशियल मार्जिन, and even in case of OTC we do not need a margin itself, right? So leverage is a key characteristic of derivatives, allowing investor to control a large position with a relatively small initial amount, which is known as margin. While this can lead to high returns, it also increases risk as losses can be exercised the initial investment also. There are so many times it happened. ठीक है, सो अगर हमने किसी चीज के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, एंड इफ दैट सिक्योरिटी फेस एडवर्स मार्केट movements as per our open position, so we may face some losses in that particular one also. ठीक है, so that is the one. Next one, which of the following correctly differentiate exchange traded derivative and your OTC over the counter derivative? ठीक है, so whenever we talk about the derivatives, so we have two type of derivative. One is OTC, two categories आपका. ठीक है, another one is your exchange traded derivatives. ठीक है, so whenever you talk about the OTC, it primarily include two. One is forward. ठीक है, so पहला आपका है forward and another one is swap. So these two are generally categorized under the OTC. And exchange traded, which include future, and another one is your options, future and options, which include call and put options. ठीक है, so future and options. ठीक है, we have these particular one. Now see, if you face a question, अगर आपको एक कोई भी question मिलता है that is around the difference between OTC versus आपका exchange traded, the difference between forward versus future, or forward versus option, or swap versus future, और स्वैप वर्सेस ऑप्शन. ठीक है, सो सबके लिए आपका सिमिलर आंसर होगा. यू जस्ट हैव टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड दीज टू. ठीक है, सो OTC आर जनरली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सो दीज आर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स those parties who entered in this particular these particular contract, they negotiate the term and conditions. That means they are customizable contract. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी parties इनमें involve होती है वो अपने हिसाब से they can decide the settlement date,
or amount or the other condition of this particular one. Exchange traded derivative are basically these are standardized contract. So standardization is generally done by the recognized stock exchanges. So they generally get traded on recognized stock exchanges like NSE, BSE. ठीक है, तो इनका जो एक्सपायरी डेट है, आपका लॉट साइज है, या फिर आपका परसेंटेज ऑफ मार्जिन है, दैट इज जनरली डिसाइडेड बाय एक्सचेंज इटसेल्फ. ठीक है, सो दैट इज द वन. ठीक है, तो ये दो आपका, ठीक है, इस तरीके से सेम चीज इन दोनों के ऊपर भी अप्लाई होगा. ठीक है, जब आप कंपैरिजन करोगे. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द रिस्क, सो द रिस्क अगर हम यहाँ पे देखते हैं इन केस ऑफ ओटीसी, सो दीज आर हाई रिस्क. ठीक है, सो यहाँ पे हाई रिस्क क्यों है आपका? ठीक है, हाई रिस्क आपका क्यों है? बिकॉज देयर आर ओनली टू पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वन. सो हो सकता है आपका कि कल के डेट में लाइक द काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व इन दिस. ठीक है, जिसको भी लॉस हो रहा है वो आपका कहीं ना कहीं पेमेंट्स को डिफॉल्ट कर सकता है. बट इन दिस पर्टिकुलर केस रिस्क इज लो. ठीक है, सो एक्सचेंज ट्रेडेड के अंदर आपका दीज आर लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज the exchange stand the guarantee in this particular case. Because like whenever you will enter into a future contract or an option contract, so exchange will ask for the initial margin. In case of future it is margin, in case of option it is known as premium. ठीक है, तो यहाँ पे वो आपका जो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द लिक्विडिटी, ठीक है, अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, ठीक है, सो these are less liquid product. ठीक है, so why OTC are less liquid product? Because we have only two parties involved in this particular one. ठीक है, and that deal is also closed. ठीक है, that is not a public deal. ठीक है, in case of future or for options or exchange or traded derivatives, these are highly liquid instruments. ठीक है, you can check on the market itself. ठीक है, if you open NSE BSE website, let's say if you want to check any company like NSE, जैसे आपने इंडेक्स चेक किया या फिर आपका आपने TCS को चेक किया, सो इफ यू ओपन दैट कंपनीज फ्यूचर, यू कैन सी टॉप 5 बायर्स, टॉप 5 sellers, total buyers, total sellers, everything is transparent. So we have high transparency in case of OTC, and we have number of buyers, number of sellers, same. So that make this particular these particular product more liquid compared to your आपका OTC. ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं, so basically the term and conditions, which is something related to standardizations. ठीक है, that is decided by exchange itself. ठीक है, जैसे in case of India we have जो expiry होती है हमारे यहाँ पे फ्यूचर की या आपका exchange traded derivative की, mostly it is on last Thursday of every month. ठीक है, at a time in case of currency, in case of equity future we have 3-month contract available. ठीक है, in case of commodity and currency we have 12-month contract are available. ठीक है, timing आपका, that means it can be up to 12 months. They can be like for 1 month, आपका 10 months, 1 years, 2 years, 5 years. It is because it is a personally or privately negotiated deal between two आपका. ठीक है, तो this is like ये कुछ parameters आपके हैं जिनके basis पे you can have comparison between OTC versus exchange or forward versus future or swap versus future or forward versus option also. ठीक है, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर. सो द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट OTC versus exchange traded derivative? Exchange traded derivative allow customization? No. ठीक है, it is OTC allow the customization. ठीक है, exchange traded derivative have higher liquidity, yes, and transparency compared to OTC. 100% true. ठीक है, so option B. OTC derivative required margin a payment? No, they required no margin. ठीक है, फॉरवर्ड में जब आप एंटर होते हो, स्वैप में एंटर होते हो, you do not have to place the margin itself. ठीक है, so OTC derivative are always risk free? No, there is a counterparty risk in case of OTC. In case of exchange traded derivative, these can be categorized as low risk or आपका no risk, because risk the exchange stand the guarantee in that particular case. ठीक है, so exchange traded derivative are traded in regulated stock exchanges, making them more transparent and liquid. The standardized nature of exchange traded derivative allow ease of trading, where OTC derivative are privately negotiated and often less liquid.
due to their customized terms. Additionally, OTC derivatives tend to be less transparent as they are not subject to same reporting and regulatory requirements as ETS है. ठीक है, ETD has. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड. पहला तो एक जैसे आपके बुक के अंदर आपका कुछ जो डिस्टिंक्शन दिया गया है दोनों के बीच में कंपैरिजन. So though we have discussed this particular one in our class also. जैसे OTC product are offered by bank and financial institution. One more thing आपका जो यहाँ से आया, ठीक है, mostly we have participation of institution in case of OTC, but in case of exchange traded derivative we do have participation from retail also. ठीक है, जैसे हम लोग किसी इंडेक्स फ्यूचर को परचेज कर लेते हैं, किसी करेंसी फ्यूचर को, या आपका ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं. बट इन केस ऑफ OTC, लेट्स से there is a credit default swap between bank and another bank, ठीक है, और bank and any other financial institution. There is a hedge position between exporter and bank. So most of the time you will see institutional involvement in case of OTC itself. ठीक है, contract date, amount and term are desired by the client. That means it is customizable. Price is quoted by bank, adding a margin to a market quote. So while we entered into जैसे interest rate swap है या others है, ठीक है, or any forward contract also. ठीक है, security, so cash margin charges on assets. ठीक है, M2M banks discretion, it is decided by bank itself based on the client status. Counterparty risk, bank risk is present, but it is a party a remote risk basically. Settlement is mostly by physical delivery. Net may settle settlement only in trading position and all. Okay, mostly used for the hedging purpose. Okay, if you talk about the future, so exchange traded derivative, future contract are traded only on recognized stock exchanges. Okay, size of contract is standardized in this particular case with a preset pre-settlement date for a specific term. ठीक है, जैसे होता है ना, like if you enter into any future contract, so your investment is like in lot sizes. ठीक है, and these lot sizes are decided by the exchange itself. ठीक है, तो जैसे let's say अगर आप निफ्टी के लॉट को परचेज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, so your value will be like आपका 50 one lot size is 50 into the current market price of द निफ्टी. ठीक है, तो अब उसका जो टोटल होगा दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, उसका मार्जिन, लेट्स से मार्जिन इज 10%, तो उसका 10% यू हैव टू इनिशियली पे इन दैट पर्टिकुलर केस आपका. ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एज वी डिस्कस दिस. ठीक है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ऑर्डर्स मैचिंग सिस्टम. एक्सचेंज कलेक्ट डेली कैश मार्जिन. बेसिकली वी हैव टू मेंटेन दैट मार्जिन ऑन M2M बेसिस. अगर जैसे हमने निफ्टी बाय किया उसके बाद नीचे आता है तो एज अ इन्वेस्टर वी हैव टू सबमिट मार्जिन टू एक्सचेंज. अगर ऊपर जाता है तो योर मार्जिन अकाउंट विल क्रेडिटेड. बेसिकली वो उस तरीके से जब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट नहीं करेगा वो रेगुलर बेसिस पे उसको मेंटेन करेगा. बट इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल सो यू विल गेट मार्जिन कॉल फॉर दैट पर्टिकुलर वन. नो काउंटर पार्टी रिस्क एज एक्सचेंज इज द काउंटर which manage the risk by managing system. Mostly net settlement by cash. Physical delivery be instead upon the commodity futures हो सकता है. ठीक है, mostly used for trading and speculation purpose आपका. ठीक है, so this is the major distinction between OTC versus exchange traded derivative. ठीक है, next one guys, I hope this is clear. अब ये इस पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं आसानी से आपका, जो कि और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, which of the following key advantages of OTC derivative compared to exchange traded derivative? OTC का फायदा क्या है? OTC derivative have lower counterparty risk. No, OTC derivative offer less flexibility, more flexibility. They are customizable. OTC derivative are subject to standardized regulation. No, they are kind of customized. OTC derivative carry higher counterparty risk ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रल क्लियरिंग मैकेनिज्म. ट्रू. ठीक है, हमें क्या ढूंढना था? की डिसएडवांटेजेस. ठीक है, सॉरी नॉट एडवांटेजेस, की डिसएडवांटेजेस ऑफ OTC. तो क्या है आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज? देयर इज अ काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वन. तो विदाउट एनी डाउट डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन एंड वी हैव दिस डिस्कशन आल्सो. ठीक है, तो अब सबको समझ में आ गया होगा आई होप. चलो नेक्स्ट वन. Which of the following statement correctly differentiate future and forward? तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि
इफ यू नो द डिफरेंसेस बिटवीन ओटीसी वर्सेस एक्सचेंज ट्रेडेड, तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ओटीसी, wrong. Future contract are standardized, true, whereas forward contract are customized, true. ठीक है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव दीज टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो कभी भी अगर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, सो डेरिवेटिव्स वी हैव फाइनेंशियल डेरिवेटिव एंड कमोडिटी डेरिवेटिव, ठीक है। सो फाइनेंशियल डेरिवेटिव जिसमें आपका मतलब दीज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर फर्दर डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट, एक्सचेंज एंड ओटीसी आपका, ठीक है। तो एक्सचेंज में आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस एज वी डिस्कस आल्सो, ठीक है। सो करेंसी एंड कमोडिटी और अदर्स आपका, ठीक है, इक्विटी एंड फॉरवर्ड की बात करें, ओटीसी की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, देन वी हैव स्वैप आपका exotics and all, ठीक है। so they generally comes under this, ठीक है। तो majorly we have four type of derivative, आपका फ्यूचर, ऑप्शंस, एक्सचेंज ट्रेडेड, फॉरवर्ड एंड स्वैप आपका दे आर जनरली कैटेगराइज ओटीसी। देन फर्दर कैटेगराइजेशन आपको मिलेगा जैसे ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस, ठीक है। स्वैप आपका जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप, कमोडिटी स्वैप, करेंसी स्वैप, ठीक है। एंड वी हैव क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, इसके अलावा आपका टोटल रिटर्न स्वैप, ठीक है, टीआरएस, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। एंड स्वैप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। ऐसा नहीं कि और भी नहीं है, बट सबसे ज्यादा व्हाट आई फील कि इन पास्ट फ्यू ईयर्स कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मिले हैं वो आपका जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये दो सबसे ज्यादा टेस्ट किए गए हैं एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन गाइस, which of the following is not a fundamental characteristic of financial derivative? So their value is derived from an underlying asset, true. They always require physical delivery, no. All, not always, ठीक है। Sometimes it is cash delivery also in case of current exchange traded derivative mostly, ठीक है। Like जैसे future है, options है, they get settled in cash, ठीक है। हाँ, some commodities derivative they generally get settled in आपका फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकल डिलीवरी भी होती है और आपका कैश भी, ठीक है। वी कैन नॉट से ऑलवेज, दे कैन बी यूज फॉर बोथ हेजिंग एंड स्पेक्यूलेशन, दे ऑफन इन्वॉल्व लिवरेज अलाउिंग कंट्रोल ओवर अ लार्ज पोजीशन with a smaller investment, ठीक है। so wrong statement is B, so B will be right answer for this particular one, ठीक है। so one of the key feature of derivative is that they derive their value from the underlying asset which can be stock, commodity, interest है। however not all derivatives are required physical delivery, ठीक है। many such as index future options are settled in cash itself, ठीक है। there are some commodities who generally get settled in योर आपका फिजिकल डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिफर फ्रॉम फ्यूचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर के बीच का डिफरेंस, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड मार्जिन, नो, फ्यूचर रिक्वायर्ड मार्जिन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज डेली सेटलमेंट, यस इट कैन बी, ठीक है। वेयर एज a forward contract has daily settlement, no, this is future contract have daily settlement, ठीक है। फ्यूचर को हम आपका कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने बाई किया, सेल किया, ठीक है। बट ये दिस आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट गेट सेटल वंस, ठीक है, एक ही बार आपका जो बाई सेल है दोनों का। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज काउंटर पार्टी रिस्क, ट्रू। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज गारंटीड बाय द एक्सचेंज, यस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज मोर लिक्विड, नो, फ्यूचर इज मोर लिक्विड देन दी फॉरवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया काफी डिटेल में आपका। आई होप अब सबका अंडरस्टैंडिंग बन गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट्स कमेंट्स में आपका मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो फ्यूचर वर्सेस फॉरवर्ड, अगर आप एक जल्दी से इसका कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है। सो फ्यूचर आर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, ठीक है। क्लियरिंग हाउस गारंटी द ट्रांजेक्शन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर M2M डेली, ठीक है, मार्क टू मार्केट बेसिस पे आपका इनका you have to maintain that margin on M2M basis, ठीक है। daily changes are settled day by day, ठीक है। settlement of for future contract can occur over a range of dates, ठीक है। frequently employed by speculators, मतलब ट्रेडिंग के लिए हम इनको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका प्राइवेट एग्रीमेंट्स बिटवीन टू पार्टीज, chances of default, counterparty risk is there, settlement of contract occur at the end of the contract, 3 महीने 6 महीने जब का भी वो कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैव ओनली वन सेटलमेंट डेट, सो दीज आर जनरली यूज्ड फॉर द हेजिंग पर्पस, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टिंक्शन और द
डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू आपका क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement true regarding option contract? ठीक है, so now the next product which we have options. ठीक है, so the basic introduction about the options is, हमने वैसे इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, so options we have two type of option. ठीक है, one is call option. ठीक है, another one is put option. ठीक है, so option which generally give right but not an obligation to buy or to sell. ठीक है, so basically this give you right to buy. ठीक है, so right call option which generally give you right to buy and put option which generally give you a right to sell. ठीक है, right to sell an underlying asset but it is not an obligation. ठीक है, so when we buy call option when we are bullish about the security. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में the security will go up, so means when you are bullish about the security you purchase the call option. ठीक है, and when you are bearish about the security. ठीक है, bearish about the security, bearish means the prices will come down. ठीक है, so you buy the put option. ठीक है, let's say there is a stock XYZ. ठीक है, XYZ कंपनी का स्टॉक है, करंट मार्केट प्राइस इज 100. ठीक है, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो आपका है 100 रुपीज. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स. ठीक है, इन्वेस्टर ए जिसका थॉट है ही इज बुलिश अबाउट दिस पर्टिकुलर वन, उसको लगता है कि बाय द एंड ऑफ लेट्स से आपका जून. ठीक है, बाय द एंड ऑफ जून द प्राइसेस ऑफ कंपनी XYZ लिमिटेड विल गो अप टू 120. ठीक है, तो इसका क्या कहीं ना कहीं इसका जो एनालिसिस है वो ये कहता है ए का कि आने वाले समय में जो कंपनी XYZ है उसके प्राइसेस बढ़ेंगे एंड दे विल गो अप बियॉन्ड 120. सो व्हाट दिस इन्वेस्टर ए विल डू. ठीक है, सो ये क्या करेंगे कि जो जून मंथ का आपका जो स्ट्राइक प्राइस है. ठीक है, स्ट्राइक प्राइस आपका जो है कितने का 120 का. ठीक है, उसको क्या करेगा आपका बाय करेगा. ठीक है, उसके लिए ही नीड टू पे सम प्रीमियम. ठीक है, तो उसके लिए जो भी इसका प्रीमियम होगा उस समय का वो प्रीमियम आपका पे करेगा. ठीक है, एंड लेट्स से देयर इज अनदर इन्वेस्टर. ठीक है, इन्वेस्टर बी हु इज बियरिश अबाउट दिस पर्टिकुलर वन, उसको ये लगता है कि बाय द एंड ऑफ जुलाई द प्राइसेस ऑफ XYZ विल कम डाउन बिलो 80. ठीक है, इसको लगता है कि इसका जो प्राइस है वो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो लगता है कि आएगा कितने से नीचे 80 से नीचे आएगा. ठीक है, सो व्हाट ही विल डू ही विल बाय द पुट. ठीक है, बाय पुट ऑप्शन. ठीक है, बाय पुट ऑप्शन एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 80. ठीक है, 80 और उसका जो भी प्रीमियम होगा. ठीक है, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, इट इज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी. कि जैसे ए को क्या लगता है कि द प्राइसेस ऑफ दिस कंपनी विल गो अबव 120 आपका जून से पहले. ठीक है, सो नाउ दिस ए विल एंटर इनटू अ जून मंथ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जैसे अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई नहीं जून, तो जो जून का कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट. सो व्हाट ही विल डू ही विल बाय द कॉल ऑप्शन ऑफ दिस XYZ कंपनी फॉर जून मंथ एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 120. उसका जो भी मार्जिन है, सपोज दैट not margin, it is called premium. Suppose that the premium of this is equal to आपका 5 rupees. तो 5 into जो भी lot size है that will be the initial investment and that can be the maximum loss borne by this particular person or investor A. ठीक है, B आपका इसका प्रीमियम was suppose that 3 rupees. ठीक है, तो आपका 3 into lot size. ठीक है, जो भी इसका lot size है. ठीक है, let's say लॉट साइज इज 1000. ठीक है, अगर हम लॉट साइज 1000 लेके चलते हैं. ठीक है, सो लॉट साइज तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 5000 और इसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा आपका 3000. ठीक है, सो ये आपका दो इन्वेस्टर हैं, दे हैव कंप्लीटली आपका मतलब इनवर्स थॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर वन, सो अकॉर्डिंगली दे कैन मेक देयर पोजीशन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पे ऑफ. ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पे ऑफ का, सो व्हाट विल बी द पे ऑफ फॉर बोथ द both the position holders. ठीक है, so one thing you have to remember. ठीक है, so let's say अगर इसने buy किया है that is also known as long position. ठीक है, it is
लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं आपका लॉन्ग पोजीशन। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। ओपन पोजीशन इन पुट, ओपन पोजीशन, आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब अगर ए इसको खरीद रहा है दैट मीन्स ही इज बुलिश। ए अगर कॉल बाय कर रहा है इसका तो बुलिश, बी अगर आपका इसका पुट बाय कर रहा है तो आपका बेयरिश। बट ओपन पोजीशन इज काइंड ऑफ कि इसने ये खरीदा, इसने ये खरीदा। सेटलमेंट लाइक जो आपका एंड सेटलमेंट होगा दैट इज बेस्ड ऑन व्हेन दे सेल दैट पर्टिकुलर वन और एक्सरसाइज देयर राइट। So option which generally give an investor to right to buy or right to sell, but not in obligations. ठीक है. So call option when you are bullish, put option when you are bearish. In case of long call or long put, ठीक है, this is long call, ठीक है, this is called long call, इसको हम long call या long position भी बोलते हैं, ठीक है, and it is known as long put, ठीक है, it is known as long put। आप open है इसमें, ठीक है। Your risk return payoff is लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो इस केस में क्या हो सकता है आपका लिमिटेड लॉस, ठीक है। लिमिटेड लॉस आपका कहां तक, जैसे प्रीमियम वॉज हाउ मच, आपका 5 रुपीज, ठीक है, प्रीमियम कितना था 5 रुपए, ठीक है, दिस इज 5 रुपीज। सो दिस इज द मैक्सिमम लॉस एरिया, ठीक है, एंड प्रॉफिट इज आपका अनलिमिटेड। तो लॉस इज लिमिटेड अप टू प्रीमियम पेड, और आपका प्रॉफिट क्या मतलब अगर कल के डेट में, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कल के डेट में, और कल के डेट मतलब बाय द एंड ऑफ आपका जून 2025, इफ द प्राइसेस डू नॉट गो बियॉन्ड दिस 120 स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, अगर जैसे जून के एंड में आपका इसका जो प्राइस था वो था सपोज दैट 118 रुपीज, ठीक है, हमने ये बोला था कि 120 से ऊपर जाएगा, बट इट इज लाइक विद इन दैट रेंज कि 120 नहीं ऊपर गया, बट कितना ऊपर गया 118 गया, ठीक है, दैट इज जनरली नोन एज आउट द मनी। अब आउट द मनी केस है तो इट्स अ लॉस सिचुएशन। लॉस कितना होगा मैक्सिमम इन केस ऑफ व्हेन यू हैव लॉन्ग पोजीशन इन ऑप्शंस, इट इज मैक्सिमम अप टू प्रीमियम पे, ठीक है, जितना आपने प्रीमियम पे किया, मतलब 5 रुपए इंटू आपका 1000 इट इज 5000, तो 5000 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट का इसका क्या होगा मैक्सिमम लॉस, ठीक है। अब ये अगर जैसे इसने 120 रुपए का ये लिया था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दैट टाइम करंट मार्केट प्राइस वाज 100 रुपीज, द प्राइसेस केम डाउन, ठीक है, प्राइसेस नीचे आ गया और प्राइसेस बिकम 50 रुपीज। इसने बोला था 150 120 से ऊपर जाएगा, बट क्या हुआ आपका अपोजिट हुआ, बी की बात सही हुई, ये आपका हो गया 50 रुपीज। इन दैट केस ऑल्सो द मैक्सिमम लॉस विल बी आपका 5000 रुपीज, ठीक है। अब ये राइट गिव राइट टू बाय बट नॉट इन ऑब्लिगेशन क्यों बोलते हैं हम लोग इसको, कि दिस ए हैज द राइट कि अगर ये 120 से ऊपर जाता है तो वो उसको बाय करके अपने प्रॉफिट को इनक्रेस करता है। अगर नहीं करेगा, लाइक जैसे अगर प्राइस 120 नहीं गया, उससे नीचे रहा या और नीचे आ गया, तो एक्सचेंज विल ऑटोमेटिकली सेटल दैट पर्टिकुलर वन, और जो एक्सपायरी होगी दैट डे द प्रीमियम, ये जो 5 रुपीज है ये क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मूवमेंट किस में होते हैं प्रीमियम में। अगर इसका प्राइस सच में बढ़ेगा तो ये जो 5 रुपए है ये भी आपका इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर घटेगा तो ये 5 रुपए एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगा। इन केस ऑफ पुट ऑप्शन सेम आपका, ठीक है, पे ऑफ इज सेम, ठीक है, इसका पे ऑफ क्या होगा आपका बेसिकली लाइक दिस इज द आपका, जैसे सपोज दैट द प्रीमियम पेड वाज हाउ मच, आपका कितना था 3 रुपीज, ठीक है, 3 रुपए का प्रीमियम है इसका, ठीक है, 3 रुपीज का प्रीमियम है। सो दिस इज द मैक्सिमम लॉस एरिया, ठीक है। अब ये इससे जितना नीचे आएगा, ठीक है, तो दिस इज प्रॉफिट एरिया फॉर दिस वन, ठीक है। सो अगेन वी हैव लिमिटेड लॉस अप टू प्रीमियम पेड, ठीक है, जितना हमने प्रीमियम पे किया है 3000 रुपीज पर कॉन्ट्रैक्ट का आपका, ठीक है, 3 इंटू 1000 का लॉट साइज, ठीक है। सो एंड प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। अगर ये सच में नीचे आ जाते हैं तो इसका प्रीमियम क्या होगा आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, जितना मतलब जितने जल्दी ये 80 के क्लोज आएगा या उससे नीचे जाएगा, ठीक है, तो इसका प्रीमियम उतनी तेजी से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आप देखेंगे जो स्ट्राइक प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस के नियर बाय जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 100 करंट मार्केट प्राइस है, तो अगर आप 95 और 105 अगर टिक साइज 5 का है, ठीक है, तो उन दोनों का प्रीमियम सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर्स आपका, तो दैट इज द वन, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी या जो बेसिक पे ऑफ्स आपके हैं किसके लिए, आपका ऑप्शंस के लिए। अब यहीं पे लाइक व्हेन यू आर बुलिश अबाउट द सिक्योरिटी, ठीक है, आप देखो यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रेटेजीज यूज होते हैं, ठीक है। सो कई बार क्या होता है ना, व्हेन वी आर आपका एक्सट्रीमली बुलिश अबाउट द सिक्योरिटी, ठीक है, आप
आपकी जो एनालिसिस है वो ये कहते हैं कि यार भैया ये तो 100% ऊपर जाना ही जाना है, सो व्हाट यू कैन डू इन दैट केस, बाय कॉल ऑप्शन, ठीक है, बाय कॉल प्लस ये तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है, प्लस व्हाट यू कैन डू सेल पुट ऑप्शन, ठीक है, सेलिंग पुट इज आल्सो नोन एज बुलिश आपका, ठीक है। और इफ यू आर बियरिश, मतलब हम डैम बियरिश हैं सिक्योरिटी के बारे में, सो व्हाट वी विल डू, वी विल बाय पुट, पहला काम तो हमारा क्या होगा, पुट ऑप्शन को बाय करना, प्लस वी विल सेल दी कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजीज होती है मार्केट के अंदर विच वी यूज दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो हम क्या सेल, हम आपका पुट को सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये प्रीमियम है ना, ये आपका 3 रुपए का, ये भी हमारा हो जाए, ठीक है। या हम कॉल को सेल क्यों कर रहे हैं, ये जो 5 रुपए का प्रॉफिट प्रीमियम पे जिसने बिड लगा रखी है ए ने, ये भी हमारा हो जाए, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, ठीक है। बट वन थिंग यू हैव टू बी वेरी क्लियर, when this is about the long position, when you have short position in an option, ठीक है, जो देखो long position in an option means unlimited profit, limited loss up to premium pays, up to premium paid in both the options call और put, ठीक है, दोनों में आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट है अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है। बट इफ यू हैव शॉर्ट पोजीशन इन ऑप्शंस, अगर आपने ऑप्शंस को शॉर्ट कर रखा है, मतलब सेल कर रखा है, इफ यू हैव सेल द ऑप्शंस, ठीक है, आप मार्केट में पहली बार एंटर करें और आपने क्या देखा, आपको लगा कि यार आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर प्राइसेस नीचे आएंगे, ठीक है, तो आपने क्या करा, उसकी कॉल को सेल कर दिया, ठीक है। इन दैट इज अ डेंजरस सिचुएशन, ठीक है। अगर उसके प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गया, that can lead to a unlimited loss. तो when we sell the position, ठीक है, लॉन्ग में तो ठीक है, शॉर्ट में क्या होता है आपका कि अनलिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड प्रॉफिट अप टू प्रीमियम, अनलिमिटेड प्रॉफिट आपका, अनलिमिटेड लॉस आपका जितना ऊपर जाएगा उतना नुकसान करेगा अगर आपने कॉल को सेल कर रखा है। कॉल सेल करने का मतलब यू आर बियरिश अबाउट द सिक्योरिटी। वहीं अगर आपने कॉल पुट को सेल कर रखा है, पुट सेल करने का मतलब यू आर बुलिश, बट क्या हुआ, नीचे आ गया, तो जितना नीचे जाएगा उतना आपका नुकसान होता जाएगा, ठीक है। तो दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल्स, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। नाउ वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चन, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो नाउ वी विल move forward our questions, we'll discuss our option question and all. Which of the following statement, हाँ, one thing, once I'll come up with the case studies ना, तो this आपका pay off related, in the money, at the money, out the money, और how we calculate the प्रीमियम, ये इनके ऊपर केस स्टडीज आपको डेफिनेटली मैं कराऊंगा, ठीक है। आपके बीएफएम में उतनी नहीं है, बट हाँ इफ यू आर गोइंग फॉर रिस्क मैनेजमेंट वहां पे मिलेगा, उस लेवल का आपको पढ़ा दूंगा तो टेंशन नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और पुट ऑप्शन गिव होल्डर राइट टू बाय, राइट टू सेल बेसिकली, ठीक है। पुट में क्या होता है, कॉल ऑप्शन गिव राइट टू बाय, पुट ऑप्शन गिव राइट टू सेल, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। A call option give the holder the obligation to sell and asset. No, there is no obligation. A put option give holder right to sell an asset at a predetermined price. So option C without any doubt will be right answer for this one. ठीक है, अगर आपने ये समझा होगा, ठीक है। So forward, now the difference between forward and आपका option, ठीक है, अब ये समझ में आ जाएगा। तो फॉरवर्ड इज बेसिकली दीज आर ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शंस आर एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके लिए कंपैरिजन करना आसान होगा। जैसे पहले फॉरवर्ड को देखते हैं। सो द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑन द एक्सपायरी, ठीक है, बट यहाँ पे आपका वो चीज नहीं होता है, ठीक है। होल्डर हैज राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। पहला, द रेट इज फिक्स एट करेंट मार्केट, इट इज आपका बेसिकली स्ट्राइक प्राइस पे आप जाते हैं इन द देन उसके हिसाब से मूवमेंट्स होता है, ठीक है। देयर इज नो फी अपेबल्स, ठीक है, यहाँ पे यू हैव टू पे द प्रीमियम। जैसे हमारा कॉल के लिए 5 था और आपका पुट के लिए 3 था हमारे केस में, इट डिपेंड ऑन स्ट्राइक प्राइस। जितने क्लोज के स्ट्राइक प्राइस होंगे उतना बड़ा प्रीमियम होगा, जितना दूर का, क्योंकि वो दूर का होने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, इसलिए आपका चार्जेस उसी तरीके से रहेंगे। Forward premium is the interest rate differential between two currencies. Option premium is determined by several factors: strike price, volatility of exchange, and interest rate. तो इसके लिए हमारे पास we do have scholars, ठीक है, ब्लैक स्कॉल मॉडल आपका जिसको हम यूज करते हैं तो कैलकुलेट दिस वन, ठीक है।
Forward contract is a simple contract for purchase or sale or even for calculation also, but this is the kind of complex one. ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ब्लैक स्कॉल मॉडल के लिए दे गॉट नोबेल प्राइज, ठीक है, तो कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यू कैन इमेजिन दैट वन. ठीक है, एंड इवन वी हैव वन अनदर वन that is used for forward. Sorry, buyer and seller have only counterparty risk. In this case, the writer of an option, ठीक है, a writer on of an option means seller of an option. ठीक है, you have short position. ठीक है, so writer means आपका short position. ठीक है, so writer of an option मतलब एक तो हो गया आपका long position, buyer of the option. ठीक है, writer of option means seller of the option. ठीक है, option seller has unlimited risk while the buyer of an option has full upside or limited loss अनलिमिटेड प्रॉफिट. ठीक है, इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या होगा, जो पे ऑफ मैंने आपको बताया था, इन केस ऑफ लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट और लॉन्ग ऑप्शन यू हैव लिमिटेड लॉस अप टू प्रीमियम पे, और आपका इन केस ऑफ आपका शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट और वी कैन से राइटर पोजीशन इन ऑप्शन. ठीक है, सो दैट इज लिमिटेड प्रॉफिट अप टू प्रीमियम, अनलिमिटेड लॉस. ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा. ठीक है, there is no market risk in plain vanilla options. However, structured product may expose to the market. जैसे आपका plain vanilla is kind of a swap agreement. ठीक है, but structured में क्या होगा, they are directly linked with the underlying one. ठीक है, तो underlying के साथ साथ उनके अंदर आपका जो movements है उनमें change होते हुए आपको देखेंगे. ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं. A trader buy a European call on stock विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 100. ठीक है, तो एक यूरोपियन कॉल इसने परचेज किया है किसी एबीसी कंपनी का, जिसका स्ट्राइक प्राइस कितने में इसने खरीदा, 100 पे. ठीक है, एट एक्सपायरेशन द स्टॉक प्राइस वाज 90. दैट व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेडर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इट्स अ बाय पोजीशन मींस आपका लॉन्ग पोजीशन. ठीक है, अब लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है, लॉन्ग कॉल है इसका ये. ठीक है, लॉन्ग कॉल के केस में व्हाट वी हैव, द पे ऑफ इज आपका, जैसे इसका प्रीमियम इसमें लिखा है नहीं है. ठीक है, सपोज दैट प्रीमियम वाज $1. ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम लॉस, ये आपका मैक्स लॉस एरिया है. ठीक है, तो इसका लॉस क्या होगा, मैक्सिमम अप टू प्रीमियम पे. ठीक है, अब इसका लॉस हुआ है, लॉस क्यों हुआ है, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ आउट द मनी. ठीक है, आउट द मनी का केस है. आउट द मनी का केस क्या है, कॉल के केस में. ठीक है, इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन. ठीक है, कॉल ऑप्शन के केस में आपका आउट द मनी इज when your strike price पूरा लिख देता हूं. ठीक है, strike price is greater than your spot price at the time of expiry. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इसको लगा था कि जो ये जो कंपनी एबीसी है इसका प्राइस क्या होगा, $100 से ऊपर जाएगा. ठीक है, $100 से ऊपर जाएगा, बट ये एक्चुअली कितना हुआ आपका, $100 मतलब यहाँ पे अभी सिचुएशन क्या है आपका, 190, मतलब स्पॉट प्राइस इज 90, स्ट्राइक इज 100. मतलब इसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट अप नहीं हो पाई सिक्योरिटी के साथ, so that is a case of out the money. In the money is आपका when your spot price is greater than your strike price. ठीक है, in the money कब होगा, प्रॉफिट का सिचुएशन कब होता, in the money is आपका spot is greater than strike. ठीक है, इसका अपोजिट आपका ऐसा कुछ होता है कि ये चला जाता है 130 और इसका स्ट्राइक विल रिमेन सेम आपका 100, तो ये इसके लिए प्रॉफिट हो जाता है 30 के मार्जिन के साथ, एंड दैट विल लीड टू द that will directly added to the premium of that particular option itself. ठीक है, तो this is at the money is like आपका इक्वल पे. ठीक है, बाय और सेल क्या है, दोनों इक्वल पे. ठीक है, मींस आपका 100 पे आपका स्पॉट प्राइस है, 100 का ही स्ट्राइक भी आपका. ठीक है, एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, ये कैलकुलेशन होती है एक्सपायरी के टाइम पे आपका सेटलमेंट जब किया जाता है. ठीक है, सो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, द प्रीमियम पेड बाय द इन्वेस्टर इन दिस केस, बिकॉज इट्स अ केस ऑफ लॉन्ग कॉल. अगर ये शॉर्ट कॉल होता तो आपका इसका क्या होता, अनलिमिटेड नुकसान हो जाता, मतलब $10 का सीधा सीधा नुकसान जो यहाँ पे आपका दिख रहा होता है. ठीक है, सो $10 होता किस केस में, इन केस ऑफ आपका शॉर्ट कॉल, राइटर ऑफ द ऑप्शन. ठीक है, सो आंसर क्या होगा आपका, द प्रीमियम पेड फॉर द ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर. आई होप यू गाइस गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, थोड़ा बहुत समझ में आ रहे होंगे. ठीक है, वी हैव, दैट्स व्हाई आई रिकमेंडेड यू कि आपको जो कॉन्सेप्ट क्लास है ना, तो फाउंडेशन क्लास है, वो देखना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है,
Which of the following best describe the main difference between American option and European option? So worldwide we have two type of option. And अगर मैं बात करूं इंडिया का, इंडियन मार्केट का, सो लेट मी क्लियर यू, इंडियन मार्केट के अंदर जो चलता है ना, दैट इज यूरोपियन ऑप्शन, ठीक है। इंडिया के अंदर ये ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव यूरोपियन ऑप्शन, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम, ठीक है, बिफोर और ऑन मेच्योरिटी। बट ये जो आपके होते हैं ना यूरोपियन ऑप्शन, ठीक है, दे हैव अ फिक्स सेटलमेंट डेट। जैसे मैंने आपको बताया ना, इन इंडिया ऑप्शंस आर गेट सेटल ऑन, इंडिया के जो मैक्सिमम आपके डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। आप हमेशा देखोगे, जैसे अगर आपका है इक्विटी डेरिवेटिव, अगर आप जैसे इन्फोसिस के सिक्योरिटी में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, इफ यू ओपन इन्फोसिस, तो इन्फोसिस कंपनी का फ्यूचर ओपन करोगे या ऑप्शंस ओपन करोगे, ठीक है, तो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट आपको अवेलेबल मिलेंगे और उनका एक्सपायरी क्या होगा, जैसे आपका अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च मंथ का जो लास्ट थर्सडे है, इसमें मार्च वाला खत्म हो जाएगा। तो अभी एट ए टाइम मार्च अप्रैल में ये 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं। जैसे ही मार्च खत्म होगा तो यहाँ पे आपका जून ऐड हो जाएगा नेक्स्ट डे से। इस तरीके से आपका एट ए टाइम यू विल गेट 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इक्विटी। बट इन केस ऑफ कॉमोडिटी एंड करेंसी वी हैव 12 मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल। बट इन केस ऑफ ओटीसी ये आपका चीज मैटर नहीं करती है, बिकॉज दैट इज अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। दे कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 years, 10 years और 50 years, ठीक है, तो दैट इज देयर डील। अब समझ में आ गया होगा। तो अमेरिकन ऑप्शन कैन ओनली बी एक्सरसाइज, नो, American option are only available for stock trading. Both American and European options can be exercised, no, and European option can only be exercised on the expiration date, whereas American option can be exercised at any time before the expiration. So without any doubt, option D will be right answer for this particular question. ठीक है दोस्तों? Next one. Which of the following key advantages of options over forward and future? So advantages from options over forward and future आपका, ठीक है। चलो ये हमें options पढ़ने से ही समझ में आएगा। Option provide unlimited profit potential with unlimited downside risk, ये हो सकता है, ठीक है। Option require no upfront cost, they require, ठीक है। Options always a guarantee of profit, नहीं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एलिमिनेट ऑल मार्केटर्स, नो, ठीक है। सो ऑप्शन ए आपका, क्योंकि इफ यू आर इन लॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, अगर आप लॉन्ग ऑप्शन मतलब लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट है, तब आपको ये कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ कंपनी एंटर्ड इनटू अ स्वैप एग्रीमेंट where it agrees to pay a fixed interest rate in exchange for receiving for a floating interest rate. What type? तो ये कौन सा स्वैप है आपका? इंटरेस्ट रेट स्वैप है, ठीक है, इंटरेस्ट। So interest rate swap are like, जैसे there are two companies, कंपनी A, ठीक है, और कंपनी B आपका, ठीक है। तो कंपनी A जिसने लोन लिया है, सपोज दैट दे हैव टेकन लोन ऑफ वर्थ रुपीज 10 crores, ठीक है, 10 crores एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, 10% पे इन्होंने लोन लिया था फॉर 10 years, ठीक है, सो 10 साल के लिए। कंपनी B जिसने लोन लिया है आपका, लेट्स अज्यूम 10 crore एट द रेट ऑफ, सपोज दैट MCLR प्लस आपका 1%, ठीक है, एज्यूमिंग की द करंट MCLR इज 9%, ठीक है, एंड सपोज दैट इट इज फॉर ऑल्सो फॉर 10 years, ठीक है। अब ये दो कंपनीज हैं, दोनों ने आपका लोन लिया है, एक ने फिक्स रेट पे लोन लिया है एंड दूसरे ने आपका फ्लोटिंग रेट पे लोन लिया, ठीक है। सो नाउ आफ्टर सम टाइम होता ना कि देयर स्टडीज, मतलब इनको लगता है कंपनी ए जो है उसको लगता है कि आने वाले समय में MCLR विल कम डाउन, ठीक है। सो मतलब ए का एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आने वाले समय में MCLR नीचे आएगा। अब MCLR नीचे आएगा तो दैट मीन्स इट विल बेनिफिटेड टू आपका कंपनी भी, ठीक है। अगर MCLR सपोज इसको लगता है, सपोज दैट MCLR विल कम टू 7%, तो 7 आएगा तो 7 + 1 8% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जहां पे मुझे 10% का, तो 2% का एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स A is interested in this, B को लगता है नहीं, आने वाले समय में MCLR will go up, ठीक है, और ज्यादा ऊपर बढ़ेगा, आपका ये जा सकता है 12% तक, तो 12% + 1, 12 + 1 is 13%, so I have to pay 3% additional interest compared to company A. So एक दूसरे की थाली का खाना इनको पसंद लग रहा है, ठीक है।
So what they generally did, they entered into a contract. ठीक है, they frame a derivative contract which is known as interest rate swap, where they are exchanging their position. This fixed one is exchanging the fixed आपका जो है अभी फिक्स पे they entered into floating में, and floating one entered into fixed आपका. So this contract between these two parties is generally known as interest rate swap आपका. ठीक है. So interest rate swap is a financial contract in which two parties exchange interest rate cash flows based on specified principal amount. In this case, the company pays a fixed interest rate and receive a floating rate, okay, which is characterized as interest rate risk. We have discussed these particular one in detail also. I hope you guys remember this one. Okay, chalo. So interest rate swap. Interest rate swap. A swap is exchange of cash flow. Okay, first of all, okay. Swap is basically exchange of cash flow between fixed and floating. Okay. An interest rate swap in exchange interest rate flow on an underlying asset or liability. जैसे liability था हमारे केस में, it can be asset also or it can be linked with some indices and all. ठीक है. The value of which is notional amount. Sometime it also happen कि जैसे हाँ, let's say we two people, ठीक है, मैं और आप, मुझे लगता है कि आने वाले समय में रेपो रेट ऊपर जाएगा, आपको लगता है नीचे जाएगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक नोशनल अमाउंट पकड़ा 1 करोड़ का. ठीक है, और हमने 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट किया. ठीक है, जिसमें कि अगर ऊपर जाएगा तो यू विल पे मी, अगर नीचे आएगा तो आई विल पे यू. ठीक है, जो भी जितने बेसिस पॉइंट्स है उसमें चेंज होगा. वी आर नॉट एक्सचेंजिंग दैट 1 करोड़ कि उस 1 करोड़ के अमाउंट के हिसाब से. ठीक है, लेट्स से अगर वो सच में ऊपर चला गया, आपका 1% है, एक साल में हमने पेमेंट डिसाइड करी, तो अगले साल आपका रेपो रेट हो गया 6 से 7%, तो 1%, 1 करोड़ का 1% यू हैव टू पे मी. अगर नीचे आ गया 6 से 5 हो गया, तो इन दैट केस आई हैव टू पे यू 1% या जो भी आपका जितना भी नीचे गया ऑफ योर जो नोशनल अमाउंट हमने डिसाइड किया था. दैट इज द काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज वी बोथ हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द अंडरलाइंग. ठीक है, अब ये जनरली यूज कहाँ पे होता है, जैसे करेंसी स्वैप में आपका बहुत ज्यादा होता है, या व्हेन यू हैव सम एग्जिस्टिंग पोजीशन. ठीक है, आपका जैसे यू हैव अ लोन विद फिक्स रेट, ठीक है, बट आपको लगता है कि नीचे आएगा, तो देन यू कैन एंटर विद समवन एल्स टू हेज योर पोजीशन, जिससे आप अपने पोजीशन को थोड़ा सा हेज कर सकें. ठीक है, सो इन अ स्वैप बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज charged according to the requirement of the borrowers or lenders. And interest rate swap is shifting the basis of interest rate calculation from fixed to floating rate. ठीक है, floating rate to fixed rate, और मतलब vice versa basically. ठीक है, the cash flow representing the interest payment during the swap period are exchanged accordingly. ठीक है, जो हमने डिसाइड किया था कि इससे ऊपर 1 करोड़ के ऊपर मतलब 1 करोड़ वॉज आर नॉमिनल वैल्यू, तो ऊपर जाएगा तो यू विल पे मी, और नीचे आएगा तो आई विल पे यू, दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन गाइस. Which of the following factor primarily differentiates swap from other derivatives? ठीक है, तो अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा. Swap are always traded in exchange? No. Swap require upfront premium payments? No. Swap involve periodic cash flow exchange over a time where future and options are one time settlement. ये ऐसा हो रहा है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्वैप के केस में क्या हो रहा है, रेपो. ठीक है, मैंने आपको बोला कि चलो क्वार्टरली बेसिस पे जो बायो मंथली मीटिंग्स होती हैं आरबीआई की, उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक पोजीशन बनाते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं. ठीक है, तो लेट्स से करंट रेपो इज 6%. अब अगली बायो मंथली पॉलिसी के अंदर अगर आरबीआई कम अप विद द न्यूट्रल स्टेटस क्यों, तो ना मैं आपको कुछ दूंगा ना आप मुझे कुछ दोगे, बट अगली आरबीआई पॉलिसी के अंदर इफ आरबीआई इंक्रीज इट 25 बेसिस पॉइंट, ठीक है, तो 1 करोड़ का 0.25% यू विल पे मी. ठीक है, और इफ आरबीआई डिक्रीज इट बाय 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट, सो 1 करोड़ का 0.25% वी विल पे यू. तो ये आपका एक रेगुलर इंटरवल के हिसाब से आपका चल रहे होते हैं. ठीक है, पेमेंट वी कैन डिसाइड कि हम आपका जैसे जैसे मीटिंग का आउटकम होगा उसके जस्ट बाद, या वी कैन हैव अ सॉर्ट कि अगले 6 महीने का हम रख लेते हैं. 6 महीने में जो ओवरऑल चेंज, जैसे बढ़ाया घटाया बराबर कर दिया तो नहीं होगा, बट अगर बढ़ाया तो आपको उतना पे करना, दैट काइंड ऑफ थिंग्स. बट इन केस ऑफ ऑप्शंस एंड फ्यूचर इट इज टोटली डिपेंड ऑन द आपका सेटलमेंट.
हमने कॉल ऑप्शन खरीदा था, फिर हमने बेचा, देन ओनली योर कॉन्ट्रैक्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, कंप्लीट होगा। मतलब जैसे अगर हम कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, आपने निफ्टी फ्यूचर खरीदा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब होगा, आपने बाय किया तब, फिर आपने उसको सेल किया, मतलब बाय और सेल का होना जरूरी है। बट यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ऐसे इंटरवल भी आपका, मतलब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था, तो 2 साल में ये जो मूवमेंट्स हो रही, कभी मैं आपको पे करूँ, कभी आप मुझे पे करो, वो चलता रहेगा। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है दोस्तों, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ज्यादा बताया, सीडीएस बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज काइंड ऑफ अ, it generally provide a kind of it is kind of insurance, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, जो लोन है उनके लिए इंश्योरेंस है, ठीक है। लेट्स से योर बैंक, सपोज दैट पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, दे हैव गिवन लोन टू कंपनी एक्स, ठीक है, इन्होंने कंपनी एक्स को आपका 100 करोड़ रुपए का लोन दिया, एंड अब ये लोन 100 करोड़ रुपए का दिया, इतना बड़ा अमाउंट दिया, तो ऑब्वियसली दे हैव डिड दैट, आपका जो लोन रिव्यू मैकेनिज्म या अदर्स जो सब कुछ मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है। और इसका जो क्रेडिट वर्दनेस था कंपनी का, दैट वाज वेरी नाइस एट द टाइम ऑफ द सैंक्शनिंग, बट स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। ऐसा हो सकता है कल के डेट में जिस बिजनेस में आपका ये कंपनी एक्स है, वो बिजनेस इंडस्ट्री वाइज देयर कैन बी सम डाउनफॉल, और देयर कैन बी सम फाइनेंशियल रिस्क इन द मार्केट इटसेल्फ, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज a probability of default in this particular loan, ठीक है, though we have securitization for some value or some percentage also. So what, let's say this 100 crore rupees आपका, या जो भी हमने इसको लोन दिया था उसमें से 100 crore rupees is in risk, ठीक है। अब इस रिस्क को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए what we generally did, we entered into a contract with some other company, it can be let's say हमने SBI के साथ, और इट कैन बी सम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, XYZ ABC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो जहां पे व्हाट SBI इज टेलिंग टू PNB, मतलब SBI और PNB के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, वेयर SBI इज अ प्रोटेक्शन सेलर, ठीक है, SBI इज वर्किंग एज अ प्रोटेक्शन सेलर एंड PNB इज अ प्रोटेक्शन बायर, ठीक है। तो SBI क्या बोला है PNB को, आपका if this company X default, we will pay you the remaining principal and interest amount. अब ये फ्री में तो प्रॉमिस करेगा नहीं, what he'll be requiring, he'll be requiring some amount, that amount is known as premium, ठीक है। ये बोला है कि ठीक है, इसके बदले में you have to pay us this much of premium, ठीक है। अब देखो यहाँ पे what PNB did as a protection buyer, without transferring the asset, they generally transfer the risk to SBI, ठीक है। उसको अपने एसेट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ा। उसने क्या किया कि जो हम यहाँ से इंटरेस्ट का अर्न कर रहे थे, लेट्स से आउट ऑफ दिस 100 करोड़ रुपीस 30 करोड़ का उसका इंटरेस्ट अमाउंट था, ठीक है, 70 करोड़ का प्रिंसिपल था, 30 करोड़ का इंटरेस्ट था। इस 30 में से उसने 10 करोड़ SBI को दे दिए, ठीक है, और उसके बाद वो टेंशन फ्री होके आपका एसेट को, मतलब दे ट्रांसफर रिस्क फ्रॉम देयर बैंक टू द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो प्रोटेक्शन सेलर, प्रोटेक्शन बाय, अगर ये डिफॉल्ट होता है तो SBI विल पे द रिमेनिंग अमाउंट, जो भी उस समय का आउटस्टैंडिंग होगा। अगर डिफॉल्ट नहीं होता, इट इज अ प्रॉफिट सिचुएशन फॉर SBI, दे विल अर्न द प्रीमियम इटसेल्फ। सो दीस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर जनरली नोन एज योर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है। दे आर लाइक developed countries में they have a huge market, but in even in Indian case also they are generally evolving, ठीक है। So a swap contract in which two parties exchange fixed and floating, this is interest rate swap, ठीक है। First आपका interest rate swap, ठीक है। A contract where one party pay periodic premium in exchange for protection against credit events such as default, ठीक है। So without any doubt आपका, so one party who pay the premium, that is PNB in our case, and the SBI is making the as a protection seller, ठीक है। So if that default will occur, SBI will pay to premium. So option B will be right answer. So credit default swap is a financial derivative that function like a insurance against a credit events. The buyer of the credit default swap make periodic payment to the seller, and in return the seller compensate the buyer if the underlying borrowers default. Understood guys? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, सो थोड़ा थोड़ा आपके बुक की जो गाइडलाइंस हैं वो भी देख लेते रहिए। सो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव और कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउ इन्वेस्टर टू स्वैप और ऑफसेट his or her credit risk, yeah, with the another investor. For example, a lender worried about the borrowers going to be default on loan, the lender could use CDS, yeah. So to swap the risk, same चीज आपका लिखा है which we have discussed earlier also, ठीक है।
आरबीआई गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, चलो हाँ इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आरबीआई गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है। सो आरबीआई इशू ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप in February 2021. Under the said guidelines, RBI has proposed to allow retail users undertake transaction is permitted transaction in permitted credit derivatives for hedging their underlying credit risk. Non-retail users shall be allowed to undertake transaction in credit derivatives for both hedging and other purposes. RBI guidelines have been issued as a measure for development of a market for corporate bonds. So basically, it is like if अगर कोई corporate bond issue कर रहा है, if they'll have this kind of thing, so investor they'll earn the investor faith. According to the draft guidelines, exchange may offer standardized single name CDS contract with the guaranteed cash settlement. Retail users shall undertake transaction in exchange traded CDS only for hedging their underlying credit risk, not for the speculation or trading purpose. ठीक है, so this is the one. चलो आगे बढ़ते हैं guys. Which of the following is not a commonly used type of swap contract? तो swap मैंने सारे type आपको पढ़ा दिए थे, आपकी बुक में भले ही दो ही हैं, but we have discussed all the type of swap. तो interest rate swap है, currency है, forward rate, देखो there is no forward rate swap, forward rate agreements are there, FRAs, ठीक है, credit default swap. तो हमारा correct answer क्या होगा? C will be right answer for this one. ठीक है, confuse मत होइएगा इसमें, ठीक है. So forward rate swap आपका, ठीक है, there is nothing called forward rate swap. We do have forward rate agreements, FRAs जिनको हम लोग आपका बोलते हैं, ठीक है. Okay, so this is the one. So please इसको थोड़ा सा एक बार आपका देखिएगा, ठीक है. So and forward rate agreement is like a forward rate contract on interest rate. It is a financial contract to undertake interest payment based on interest rate at a risk future. ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था ना रेपो रेट वाले पे एंड अदर्स, दैट इज दिस वन. ठीक है, नेक्स्ट वन. Which of the following regulatory changes introduced by RBI to significantly boost treasury activities in bank? Allowing bank to use interest rate swap solely for hedging purpose. Allowing bank to use IRS not only for hedging but also for trading purpose. Restricting MIBOR. So B should be right answer for this one. ठीक है. So पहले आपका this was the, but अभी उन्होंने बोला कि like you can use for hedging as well as for trading purpose or speculation purpose itself. ठीक है. Okay, just a minute. हाँ. ठीक है, आगे बढ़े. सो डेवलपमेंट आपका प्लीज एक बार थोड़ा सा इसको इस डॉक्यूमेंट को रीड आउट कीजिएगा. ठीक है, एक्चुअली आई हैव वन सेशन, सो दो वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर वन इन आवर रेगुलर फाउंडेशन क्लास आल्सो. ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर हमने ये डिटेल में डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा इसको आपका डिस्कस करेंगे और मतलब स्टडी करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बहुत बार आपको जैसे डॉक्यूमेंटेशंस और अदर्स इनसे रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जिनके ऊपर जैसे ISDA मास्टर एग्रीमेंट्स है, ठीक है, शेड्यूल टू मास्टर एग्रीमेंट्स है और ट्रेड कन्फर्मेशन आपका है. ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सो प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, आई विल शेयर दिस PDF and I guess this is the last question or what? I have 3-4 minutes only. So what was the primary reason for formation of FIBL? So to create an independent regulatory body, no, to establish centralized entity for setting, reviewing and administrating benchmarking. ठीक है, so option B will be right answer. ठीक है, FIBL जिसको हम लोग आपका बोलते हैं. ठीक है,
So please have a look around these one. These data is very important, ठीक है. So ये आपका बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कौन कौन से रेट्स आपके FIBL के द्वारा डिसाइड किया था. Earlier these rate was get decided by Foreign Exchange Dealer Association of India, but now these get decided by FBIL, ठीक है. So would be the best using a commodity swap, ठीक है. A farmer want to lock the future prices, पहला ही आपका करेक्ट आंसर है. यस, हाँ, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है, ठीक है. A company expect interest rate to decrease, so they can enter into interest rate swap, ठीक है. Which of the following swap would most beneficial, ठीक है? Entering into a swap where pay for the fix and forward, ठीक है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following is the function of derivatives? Derivative perform important economic functions for price discovery, contracepts increasing the depth of market, derivative improve the liquidity, ठीक है. So what will be your correct answer? All of the above will be the right answer, ठीक है. So these are the features of derivatives, ठीक है. So ये again we have discussed these particular one, basically functions of derivatives, ठीक है. तो क्या क्या core functions आपके हैं वो, ठीक है. Following statement about derivative is false. Future contract eliminate counterparty risk. Forward contract are more customizable than future. Swap involve periodic cash flows. European option allow early exercise. No, ठीक है, this is wrong, ठीक है. तो D will be right answer for this particular one, ठीक है. Which of the following best describe the differences between future and forward, ठीक है. तो आपका future contract are traded on recognized stock exchange. Forward are OTC, ठीक है. Future contract have standardized terms. Future contract have standardized term, ठीक है. This is customized. Future contract are more commonly used for speculation, ठीक है, बिल्कुल सही. And this is for hedging. तो ये सारे ही statement क्या हैं आपके correct हैं. All statements are correct, ठीक है. OTC not a feature of OTC. OTC product are deferred by bank and financial institution. There is no counterparty risk. There is counterparty risk, ठीक है. Wrong statement आपका था, ठीक है. Next one. Not a exchange traded derivative, ठीक है. Not a feature of exchange traded derivative. Future contract are traded on recognized stock exchange. Size of contract are desired by client. No, this is not the one, ठीक है. तो this is wrong. तो आपका statement वही wrong है, ठीक है, जहाँ पे we cannot decide the size, which is decided by the exchange, standardized contract, ठीक है. Options के संबंध में कौन सा statement correct है? Forward contract are traded on exchange. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, रॉन्ग, ठीक है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना हमें. मार्केट फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वेरी लिक्विड वाइल फ्यूचर इट इज, दिस इज ट्रू, ठीक है. मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है आपका, ठीक है. हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है. काउंटर पार्टी रिस्क एसोसिएटेड विद फॉरवर्ड इज मोर एज कंपेयर टू दिस. तो ओनली ए आपका, ठीक है. ओनली ए मीन्स बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. कुछ क्वेश्चन है आपका ये, आई गेस देयर आर, हाँ, ओके, दिस इज, ठीक है. तो ये एक बार आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं. आई हैव वन अनदर सेशन एक्चुअली. सो आई होप यू एंजॉय द डिस्कशन, ठीक है. और देयर आर फ्यू थिंग्स एट द एंड जो आपकी पेपर कटिंग्स हैं उनको जरूर आपका स्टडी आपका गो थ्रू करें, ठीक है. पॉज करके एक बार थोड़ा सा उनको रीड आउट जरूर करें. वी हैव डिस्कस दोज पर्टिकुलर इन फाउंडेशन ऑल्सो, बट स्टिल आई रिकमेंड कि एक बार उनको गो थ्रू जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों. तो आज के लिए इतना ही करेंगे. दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन. I'll see you tomorrow with our next unit itself. All right. So this is it. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.